السلام علیکم ٹو آل آف یو. میں ہوں عثمان جاب علی اور آج کا ہم یہ ایک فری لینسنگ اویئرنیس سیشن کنڈکٹ کر رہے ہیں. یہ فری لینسنگ کا سیشن ان لوگوں کے لیے ہے جو فری لینسنگ کیریئر کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, ابھی بگنر ہیں اور اس سے پہلے ان کو اتنا زیادہ ٹیکنالوجی کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور لیکن وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں. تو آج کا یہ سیشن جو ہے وہ اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے ہے جو فری لینسنگ کیریئر کو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سیشن ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو آلریڈی فری لینسنگ میں ہیں اور جو ہے وہ آلریڈی اس میں کام کر رہے ہیں یا اس پلیٹ فارم سے ارننگ کر رہے ہیں یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو سیشن ہے یہ صرف نیو بیس کے لیے ہے. اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جو واٹس ایپ کا ہمارا گروپ ہے اس کو جوائن کر لیں, وہاں پہ لنک شیئر کیا گیا ہے. آج کا یہ جو سیشن ہے یہ 1 گھنٹے کا ہوگا, جس میں آپ کو اگر کوئی بھی پرابلم ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم اس کیریئر کو کہاں سے سٹارٹ کریں, تو آج آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ فری لینسنگ کیریئر کو آپ فری لینسنگ کی ABCD سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہم کوئی بھی جب سٹارٹ کرتے ہیں, اسکولنگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی, تو وہ ABCD سے شروع ہوتی ہے. اسی طرح آہستہ آہستہ آپ گریڈ 1 2 3 اور پھر میٹرک, ماسٹرز, بیچلرز اور PhDs تک جاتے ہیں. اسی طرح سیم فری لینسنگ کیریئر کو بھی آپ اسٹیپ نمبر 1 فری لینسنگ کی ABCD سے شروع کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ وہ خواتین جو گھروں میں ہیں اور ان کو وہ کہیں پہ فزیکلی جا نہیں سکتی ہیں, ان کے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے, سم ٹائمس کچھ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں موجود ہے, پھر بھی آپ موبائل سے فری لینسنگ کی ABCD کو شروع کر سکتے ہیں, سیکھنا شروع کر سکتے ہیں. لیکن موبائل آپ کی ڈیسٹینیشن نہیں ہے, آپ نے آگے چل کے جو ہے وہ آپ لیپ ٹاپ بھی پرچیز کر سکتے ہیں, اور تاکہ آپ اپنے فری لینسنگ کیریئر کو زیادہ اچھے طریقے سے آگے لے کر چل سکیں. تو سب سے پہلے یہ جو فری لینسنگ کی کا ہمارا یہ سارا فری لینسنگ کی ABCD جس کو ہم بول رہے ہیں, یہ ہم ابھی بہت سارے ایسے ابھی آپ نے سے جوائن کیا ہوگا جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ فری لینسنگ ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو حنا بلال ہے, ہمارے ساتھ ٹرینر ہیں جو کہ اس بیسک فری لینسنگ کورس کو کرواتی ہیں. اور جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ میسج کرتے ہیں کہ یوٹیوب سے وہ سیکھ رہے ہیں, لیکن انہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی اتنی زیادہ ویڈیوز میں, وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا کیریئر کہاں سے شروع کریں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو حنا جو ہے وہ ان کو ہاتھ پکڑ کے اسکرین شیئر کر کے ہر چیز سکھانا سٹارٹ کرتی ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ وہ انڈیپینڈنٹ لرنر بن جاتے ہیں. تو ابھی ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ فری لینسنگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, یہ کیا کانسیپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ سیشن ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلی دفعہ فری لینسنگ کا نام سن رہے ہیں, یا فری لینسنگ کا نام تو سنا ہوا ہے بٹ اس میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ کانسیپٹ لے لیتے ہیں کہ فری لینسنگ کیا ہوتی ہے. اس کے لیے حنا ہمیں جو ہے وہ ایک ویڈیو دکھائیں گی جو کہ سر ریحان اللہ والا کی ہے, جس میں انہوں نے بہت آسانی سے اور بہت آسان سے ورڈز میں سکھایا ہے کہ فری لینسنگ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ والی ویڈیو اس کو غور سے دیکھیے گا. جی حنا, اوور ٹو یو. السلام علیکم, میرا نام حنا بلال ہے اور میں عظمیٰ حفیظ آن لائن ارننگ اسکول میں ایز اے ماسٹر ٹرینر کام کر رہی ہوں. میں اپنی اسکرین شیئر کر رہی ہوں, آپ سر کی ویڈیو دیکھیے. فری لینسنگ آپ آزادی سے جو کام کر سکتے ہیں اس کو فری لینسنگ. حنا, آپ کی کینوا والی ہمارے اسکرین ملک کے نظر اندر آ جو رہی ہے, لوگ ویڈیو کی نہیں آ رہی. جی میم,
आपकी जो है ना वो कैनवा वाला पेज ओपन हुआ है, वो नहीं नज़र आ रही, वीडियो नहीं नज़र आ रही। ओके मैम। मैम होम पेज पे मुझे जाना है और होम पेज को मैंने शेयर किया लेकिन ओपन नहीं हो रहा है यहाँ से। अच्छा, अभी ना ये ऑफ हो गया, दोबारा से प्रेजेंट करें। जी मैम। होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं, जो दुकान चला रहे होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं, किसी के नौकर नहीं होते, किसी को तनख्वाह नहीं लेते, अपनी मर्जी से अपने टाइम पर आवाज़ आ रही है लेकिन अपनी स्क्रीन सब में शेयर हो रही है। जी मैम मैं चेक करती हूँ। प्रेजेंट पे देखिए शेयर स्क्रीन की ऑप्शन होगी। मैम एंटायर स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन नहीं आ रही, यहाँ पे मैंने शेयर का ऑप्शन किया है मैम, आप देखिएगा। मैम एंटायर स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन नहीं आ रही है। जी मैम अभी आ रही है? जी अब आ रही है। बांध के ऊपर काम करते हैं, यानी आपने किसी फ्रीलांसिंग आप आज़ादी से जो काम कर सकते हैं उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो लोग ठेकेदार होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं, जो दुकान चला रहे होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं, किसी के नौकर नहीं होते, किसी को तनख्वाह नहीं लेते, अपनी मर्जी से अपने टाइम पर अपनी जबान के ऊपर काम करते हैं। यानी आपने किसी को कमिटमेंट दी कि मैं आपको ये काम रंग करा के दे दूंगा, 3 दिन लगेंगे, इतने पैसे होंगे, ये फ्रीलांसिंग है। किसी को आपने कहा ये इलेक्ट्रिक की जितनी बत्तियां हैं मैं लगवा के दूंगा, इतने पैसे होंगे, ये फ्रीलांसिंग है। आप जानते हैं ना ऐसे लोगों को जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, रंग का काम करते हैं, वो सारे कौन है? हाँ, वो फ्रीलांसर है। उन फ्रीलांसर्स जैसे वो हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी फ्रीलांसिंग को मुश्किल बना लिया, क्योंकि बहुत मुश्किल सी चीज है। अब जब हम पेंट कराते हैं, इलेक्ट्रिक का काम कराते हैं, प्लम्बिंग का काम कराते हैं, दुकान से कोई चीज खरीदते हैं, तो यहाँ पर एक फिजिकल इंटरेक्शन होती है, बंदा सामने बैठा होता है और उसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही ना, आवाज नहीं आ रही? जी सर। तो अब अगर ये सामने बैठे हुए हैं और आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, फ्रीलांसिंग की दुनिया में आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बैठते हैं, ग्राहक यानी कस्टमर आपका मोबाइल के और इंटरनेट की दूसरी तरफ है, और वो जिस दुनिया में रह रहा है वहां पर आमदनी उसकी फर्क है। पाकिस्तान में आप जाते हैं, एक अदद बिरयानी की प्लेट लेते हैं तो अच्छी बिरयानी 200 रुपए तक की मुनासिब आ जाती है, लेकिन अगर आप कैलिफोर्निया चले जाएंगे तो वही बिरयानी की प्लेट की कीमत हो जाएगी 2500 रुपए। आप उसी के अंदर किसी अच्छे होटल में चले जाएंगे तो उसकी कीमत हो जाएगी 8000 रुपए, वही बिरयानी की प्लेट है, चावल वही है, आलू वही है, मसाला वही है, शाम का मसाला ही बोल के खिलाया हुआ उसने आपको। लेकिन क्योंकि जिस इलाके में आप खरीदने जा रहे हैं वहां पर आमदनी उसकी ज्यादा है, तो वो उसके ज्यादा पैसे दे सकता है। अब यहाँ पर जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं या कोई अकाउंटिंग का काम करते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो कंप्यूटर पर बैठ के या मोबाइल पर बैठ के की जा सकती हो, इसके ऊपर इस मार्केट में, इस फ्रीलांसिंग के बाजारों में ये काम किया जा सकता है। ठीक हो गया? आपकी बात समझ आ गई? तो अब हमने बाजार का डिस्कवर करते हैं कि बाजार कहाँ है।
ایک بازار ہے اس کا نام ہے fiverr.com, دوسرا بازار ہے اس کا نام ہے freelancer.com, تیسرا بازار ہے اس کا نام ہے guru.com, چوتھا بازار ہے اس کا نام ہے upwork.com. ان تمام بازاروں میں سے سب سے آسان بازار جو مجھے پتا ہے اس کا نام ہے fiverr.com. ٹھیک ہے. اور بہت سارے کام آپ ڈیجیٹلی کر سکتے ہیں. ڈیجیٹلی کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ جو بھی کام آپ موبائل کے اوپر بیٹھ کر یا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں اس کو ڈیجیٹل کام کہتے ہیں, کیونکہ آپ اس کو کمپیوٹرز کے ذریعے کر رہے ہیں. آپ نے مثال کے طور پہ پاسپورٹ کی اپلیکیشن دی, تو اب آپ کو پاسپورٹ کے دفتر جانا ہے, فارم کاغذ ہاتھ سے بھرنا ہے, جمع کرانا ہے, 200 روپے کی فیس دینی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ کام فزیکل تھا. یہی سارا کام اگر آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے نادرا کی ویب سائٹ پہ جائیں, کمپیوٹر سے ٹائپ کر دیں, ایزی پیسہ سے پیمنٹ کر دیں, تو یہ سارا کام ڈیجیٹل ہو گیا. اب اسی کام کرنے کے, کیونکہ آپ نے پاسپورٹ کسی کا فارم بھر دیا تو وہ آپ کو کہے گا کہ میں آپ سے 1000 روپے چارج کروں گا, مثال کر رہا ہوں, اور میں آپ کا فارم ڈیجیٹلی بھر دوں گا. تو کوئی بھی کر سکتا ہے, کہیں سے بیٹھ کے کر سکتا ہے. آپ کے لیے کیا ہو گیا, آسانی پیدا کر دی, کیونکہ آپ روز روز ایک کام نہیں کرتے تو آپ کو نہیں آتا. اب آپ اگر الیکٹریشین کا کام روز روز نہیں کرتے تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یار یہ کرنٹ مار دے گا, میں نہیں کر رہا, کسی کو پیسے دے کے 500 روپے میں بلب لگوا, نو پرابلم. بالکل اسی طرح سے بہت سارے لوگ گرافک ڈیزائننگ نہیں کرتے, گریٹنگ کارڈ نہیں بناتے, وزٹنگ کارڈ نہیں بناتے. کیوں؟ ان کا روز کا کام تو نہیں ہے نا یہ, ان کو کیا معلوم کہ کیسے کیا کرنا ہے. اس کے لیے ایک ایپ ہے, اس کا نام ہے, پہلے ہوتا تھا فوٹو شاپ, اس کے لیے چاہیے ہوتا تھا بڑا بڑا, اور ایک اور ایپ آئی اس کا نام ہے کینوا, کوک کا کین, واہ 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 واہ, کینوا. اس طرح سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. کیا نام ہے؟ کینوا. تو کینوا ہم نے یاد کر لیا, اور کینوا کی ایپ یاد کرنے سے اب ہم نے اس کو فون پہ ڈال دیں گے. اس ورکشاپ کے دوران میں ایک بچہ یا نوجوان آپ کے لیے آپ کا فون لے کے, ہو سکتا ہے پہلے ہی آپ کو آپ کے فون میں ڈال دیا ہو. اگر ابھی تک آپ کے فون میں کینوا اور فائبر نہیں ڈلا ہے تو ورکشاپ آرگنائزر سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کے فون میں کینوا اور فائبر کی ایپ ڈال کے پہلا گگ بھی وہ خود بنا دیں. اچھا جی, یہ ہے جی فری لانسنگ, کہ آپ نے کوئی بھی کام کسی کے لیے بیٹھ کے اپنے موبائل سے کیا, کمپیوٹر سے کیا, اور اس کو بیچ دیا امریکہ میں, افریقہ میں, لندن میں, آسٹریلیا میں. وہ آپ کسٹمر کی شکل دیکھ سکتے ہیں, میکسیمم اس سے چیٹ پہ بات کر سکتے ہیں, اور یہ کام ہو گیا. اب اس کے لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے انگریزی آنا ضروری ہے, نہیں آنا ضروری ہے. بھائی ایک بجلی والے کی اگر پٹھان ہے, میں اردو اسپیکنگ ہوں, تو اب اس کو مجھے صرف سمجھانا آنا چاہیے کہ یار یہ بٹن لگانا ہے, ہاں زبردست لگا دیا بٹن. اگر 2-3 دفعہ کام کرایا اور اس نے بغیر زبان کے کام کر دیا تو کام صحیح ہے. اگر آپ کا کام, آپ اپنی بات اس کو نہیں سمجھانے پائے تو وہ آپ سے کام نہیں کر سکے گا, اور آپ سے کام نہیں کرا سکیں گے. تو اتنی زبان آنی چاہیے کہ آپ کمیونیکیٹ کر سکیں. وہ آپ کی گرامر چیک کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, وہ آپ کا ہیلو سر, آپ نے لڑکے کو لڑکی بنایا, کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو کیا فرق پڑتا ہے. اس کو کام سے مطلب ہے کہ آپ نے اس کا کام گرافک صحیح بنا دی, اس نے آپ کو میٹر دیا, بھائی لکھ دو ہیپی برتھ ڈے فرقان بھائی, ختم ہو گئی بات. اگر آپ یہ لکھ سکتے ہیں, کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں, جس میں ہم ماسٹر ہیں, تو کام ہو گیا, ختم ہو گئی. یہ ہوئی آپ کی ڈیزائننگ. اپنی بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی سوال؟ آواز نہیں آ رہی, کوئی سوال؟ چلو صحیح. تو اب ہم چلتے ہیں اگلی طرف. جی, ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں بتایا گیا کہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ میں سے کون مجھے بتائے گا, اگر آپ لوگ اپنے کیمراز آن کر لیں, اگر آپ حجاب میں بھی ہیں تو حجاب میں اپنے کیمراز آن کر لیں تاکہ آپ کو پہچانا جا سکے کہ آپ کون ہیں. اچھا, مسز ظہیر ہیں ہمارے ساتھ, آپ بتائیں گے کہ آپ کو کیا سمجھ آئی, فری لانسنگ کیا ہوتی ہے. یہ ویڈیو آپ نے دیکھی؟ جی, نورین, سلوہ, شازیہ, آپ میں سے اگر کوئی بتائے کہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے. آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, کتنا سمجھ آیا آپ کو السلام کہ علیکم فری لانسنگ کیا ہے؟ وعلیکم السلام. میم, میں بتاؤں؟ جی سلمہ, پہلے اپنا تعارف کرا دیں, آپ کہاں سے ہیں, اور اگر آپ کے لیے پاسبل ہے تو آپ آن کر دیجیے گا, کیمرہ آن کر دیں. اوکے میم, میرا نام مسز ظہیر ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. میری کوالیفیکیشن BSc ہے. ٹھیک ہے,
اچھا آپ کو ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سیشن ان لوگوں کے لیے جو فری لینسنگ کیریئر کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم نے بالکل فری لینسنگ کی ڈیفینیشن سے شروع کیا ہے کہ فری لینسنگ ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا سمجھ آئے گی ویڈیو دیکھ کے؟ میم فری لانسنگ وہ ورک ہے جو بندہ خود اپنی مرضی سے کر سکتا ہے نا. کسی کے انڈر میں آپ رہ کر کام نہیں کر رہے ہوتے، آپ خود مختار ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے یہ کام آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ بہت سارے کام ہیں جو آپ خود سے کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل اپنے گھر میں ہیں، آپ گھر میں صفائیاں بھی خود ہی کرتے ہیں، کھانے بھی خود ہی بناتے ہیں، بہت سارے جی کام آپ جی خود ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ بھی فری لینسنگ میں آتا ہے؟ جی جی بالکل اسی طریقے سے. ٹھیک ہے. نہیں میم، وہ اچھا فری چلیے ٹھیک لانسنگ ہے. میں نہیں آتا. اسے فری لانسنگ نہیں کہہ سکتے. کام وغیرہ گھر کے کام کو آپ فری لانسنگ نہیں کہتے. فری لانسنگ تو وہ ہے جو آپ فری کام کرتے، مطلب اپنی پیس پہ اور اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، مگر آپ پے لیتے ہیں اس کے لیے، جیسے آپ اس کے تھرو ارن کرتے ہیں، شاید اس کو فری لانسنگ کہتے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ نورین بتا رہی ہے یا مسز ظہیر بتا رہی ہے؟ کیونکہ دونوں کے جی نہیں، مائکس میرا نام نورین ہے اور میں ٹھیک ہے. ایک ہاؤس وائف ہوں اور میری کوالیفیکیشن میم انٹر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے صحیح بالکل بتایا نورین کہ فری لینسنگ کیا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے پاس کوئی بھی گیجٹ ہونا چاہیے، چاہے موبائل ہے چاہے لیپ ٹاپ ہے، اور آپ کو کسی نے کوئی کام دیا کہ کر کے دے دو. فار ایگزامپل کوئی پوسٹر بنا دو، کوئی فیس بک کی پوسٹ بنا دو، کوئی بروشر بنا دو، سی وی بنا کے دے دو، یا کوئی بھی کام آپ کو کہا اور آپ نے وہ کام اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کیا اور اس کو ڈیجیٹلی واپس ریٹرن کر دیا کلائنٹ کو، اور کلائنٹ نے آپ کو اس کو پے کر دیا، اس کی اماؤنٹ آپ کو پے کر دی جتنی اس کی اجرت بنتی تھی کسی بھی پیمنٹ میتھڈ کے تھرو. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ فری لینسنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ نے ڈیجیٹلی کوئی بھی کام کسی بھی کلائنٹ کو کر کے دیا، اور آپ نے جا کے فزیکلی نہیں کر کے دیا بلکہ اپنے کمپیوٹر پہ کہیں پہ بھی بیٹھ کے، اس سے میٹر نہیں کرتا کہ آپ کہاں پہ ہیں، چاہے اپنے گھر میں ہیں یا کسی اور کے گھر میں ہیں یا کہیں پہ بھی ہیں آپ. ٹھیک ہے، فزیکل لوکیشن میٹر نہیں کرتی فری لینسنگ میں. آپ اب جو ہے ہم کیونکہ ایک گلوبل ورلڈ میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لاہور میں نہیں ہیں، ہم کراچی میں نہیں ہیں. اب آپ اپنے شہروں کو اسپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ فار ایگزامپل میں جو ہوں لاہور میں بیٹھی ہوئی ہوں تو میں کہیں پہ فری لینسنگ نہیں کر سکتی ہوں. نہیں، آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، صرف آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہونی چاہیے، اور ساتھ میں آپ کے پاس لیپ ٹاپ، کمپیوٹر یا موبائل جو بھی ہے وہ گیجٹ ہونا چاہیے جس کے تھرو آپ کام کر کے کلائنٹ کو ہینڈ اوور کر کے دے سکیں. ٹھیک ہے، فری لینسنگ میں بہت طرح کے کام ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں. ایک بہت زیادہ بڑی فیلڈ ہے ٹیکنالوجی کی، کہ جس میں آپ فار ایگزامپل ویڈیو ایڈیٹر بھی بن سکتے ہیں، گرافکس ڈیزائننگ کی اسکل بھی سیکھ سکتے ہیں. ابھی آگے چل کے میں آپ کو ساری بتاؤں گی کہ کون کون سی آپشنس اور کون کون سی اسکلس موجود ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی بھی اسکل سیکھیں، اس میں ایکسپرٹ بن جائیں، اور اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ کلائنٹس کو فائنڈ آؤٹ کریں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ، اور ان کو وہ کام کر کے دے دیں، اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ابھی آج کل کے دور میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی خواتین کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو فزیکلی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چار دیواری اپنے گھر میں بیٹھ کے آرام سے پردے میں بھی کام کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، صرف لیکن آپ کو یہ پراپر سیکھنا پڑے گا. کوئی بھی کام جو ہے آپ نے جب کسی کو سیل کرنا ہے تو سیل کرنے سے پہلے آپ نے اس کام کو سیکھنا ہے، اور جب وہ آپ کام سیکھ جائیں گے تو پھر اب آپ نے اس کو بیچنا بھی سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، صرف کام نہیں سیکھنا بلکہ اس کو سیل کرنا بھی سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں کسی بھی فیلڈ میں، لیکن ان کو بیچنے کی اسکل نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، مارکیٹنگ نہیں آتی ہے، اس کو سیل نہیں کر پاتے، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس اسکل کو کن کن پلیٹ فارمس پہ سیل کریں. تو یہ جو ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی تھی، اس میں کون سا کوئی ایک پلیٹ فارم جو آپ کو یاد ہو جو بتایا گیا کہ اس پلیٹ فارم پہ آپ اپنی کوئی بھی اسکل سیکھنے کے بعد سیل کر سکتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ جی، فائبر بتائی تھی نا انہوں نے، اور کینوا بھی بتائی تھی میم. جی، کینوا تو ایکچولی فائبر وہ بتائی تھی جو جہاں پہ آپ اسکل بیچ سکتے ہیں. کینوا تو ایکچولی ہے جس کے تھرو آپ وہ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. گرو کرتے ہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں کینوا تو ایک گرافکس ڈیزائننگ کا ٹول بتایا گیا نا، ایک ایپ بتائے گی کہ جس کے اوپر آپ بیسک گرافکس ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، موبائل کے تھرو بھی کر سکتے ہیں اس پہ کام. جی اور
प्लेटफॉर्म्स कौन से बताएंगे, वो कौन सी ऐसी मंडियां हैं जहां जाके आप अपने कामों को सेल कर सकते हैं? अब आपने फिर बताया था ना, जी जी, कौन कौन सा फाइवर। प्लेटफॉर्म बताया? ठीक है, फाइवर, फाइवर और इसके अलावा जी। और इसके अलावा मैंने तो अपवर्क के बारे में भी सुना है, और एक इस तरीके से उसके बारे में भी सुना है, लेकिन बेसिकली मैंने फाइवर के बारे में ज्यादा सुना हुआ है। सही, ठीक हो गया। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप अपनी स्किल्स जो भी आपने सीखी हैं उनको सेल कर सकते हैं। छोटी से छोटी स्किल, चाहे वो एक फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन करना है, चाहे आपने जो है कोई वीडियो एडिट करके काम देना है, तो कोई भी आपने चीज़ सीख ली और उसके बाद अब आपने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके उसको सेल करना है। होता ये है कि हम फ़ौरन से प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, हम फाइवर का नाम सुनते हैं या अपवर्क का, तो फ़ौरन हम उस पे जाके काम तलाश करने की कोशिश करते हैं, और अभी हम पहले जो है वो अपनी हमने एक्सपर्टीज़ हासिल नहीं की होती, स्किल्स नहीं ली हुई होती। और स्किल्स में सिर्फ ये टेक्निकल स्किल्स नहीं होती हैं कि जैसे आपने वीडियो एडिटिंग की स्किल सीख ली, बल्कि जब आपने किसी प्लेटफॉर्म पे जाके उस स्किल को सेल करना है, तो फिर आपके पास एक कम्युनिकेशन की जो स्किल जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तकरीबन 80% जो है वो आपकी हार्ड स्किल मैटर करती है, और 20% जो है वो 80% आपकी कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है, 20% आपकी टेक्निकल स्किल मैटर करती है। ठीक है, आप कोई भी आपने काम सीख लिया, लेकिन अब आप उसको जब तक अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होगी तो आप उसको किसी प्लेटफॉर्म पे जाके सेल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपने ये स्किल भी सीखनी होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब ये कि आप अच्छे तरीके से आपको बात करनी आती हो क्लाइंट के साथ, और साथ में अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में या अपने लोकल जगहों पे सेल करना चाहें तो उसके लिए तो उर्दू इनफ है, लेकिन अगर आपने डॉलर्स में अर्न करना है और बाहर कंट्रीज़ में काम करना है तो फिर उसके लिए आपको अपनी स्पोकन भी अच्छी करनी पड़ेगी, रिटन इंग्लिश, स्पोकन एंड रिटन दोनों अच्छी करनी पड़ेगी, प्लस कम्युनिकेशन। ठीक है, इंग्लिश प्लस कम्युनिकेशन। सिर्फ लैंग्वेज जो होती है वो आपकी कम्युनिकेशन नहीं होती है, लैंग्वेज तो एक सिर्फ बात करने का एक ज़रिया है ना, उसके साथ आपको आपकी कम्युनिकेशन, जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स में कंसिडर करते हैं कि हमारी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम क्लाइंट के साथ अच्छे तरीके से डील कर सकें और उसको सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिस पे काम किया जा सकता है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके सेल किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि आप फ्रीलांसर का कैरियर शुरू करने जा रहे हैं और अभी आपको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि आप कहाँ से स्टार्ट करें या किस स्किल से शुरू करें, तो इस चीज़ को सोचने में आप जितना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हमको, क्योंकि 6 महीने तक ना हम उसी पे लगे रहते हैं कि शुरू कहाँ से करें, हम कौन सी स्किल सीखें, हमें नहीं समझ आ रही, पता नहीं, हमें अपनी पसंद भी नहीं पता कि हमें क्या अच्छा लगता है। तो आप जो है वो कैनवा बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने मोबाइल पे उससे खेलना स्टार्ट करें, उससे प्ले करें, उसमें बहुत सारी चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें बन सकती हैं। अभी हिना थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती है कि कैनवा पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग शायद मे भी यूज़ भी कर रहे होंगे, आपको आइडिया होगा। तो कैनवा के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं, और ये बेसिक चीज़ें बना के आप अपने लोकल क्लाइंट्स को भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है, उनके प्लेटफॉर्म्स मैनेज कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, किसी के फेसबुक बिजनेस पेजेस हैंडल कर सकते हैं। तो ये छोटी सी बहुत आसान सी स्किल है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है, तो आप ये इसको जो है वो सीख सकते हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जब हमने सीख लिया तो फिर कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ जाके हम इनकी सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैनवा का थोड़ा सा बता दें हिना कि हम इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। जी, आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम। यस मैम, हो रही है। ठीक है जी, तो आपके सामने जो इंटरफेस शो हो रहा है ये है कैनवा। ठीक है, कैनवा जो है वो बेसिकली जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टूल है। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग इस टूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें आप जो है क्या क्या कर सकते हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो इसमें आप जो है विजुअल सूट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी प्रेजेंटेशंस हैं,
आपकी स्कूल की प्रेजेंटेशंस हों या चाहे वो आपकी वर्क प्लेस की जो भी ऑफिस प्लेस है अगर आपकी, तो उसके लिए अगर आपने कोई प्रेजेंटेशंस तैयार करनी है तो वो इजीली आप कैनवा में रेडी कर सकते हैं। इसमें वाइट बोर्ड्स को यूज़ किया जा सकता है, इसको एज अ पीडीएफ एडिटर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। बाज़ औक़ात जो है आपने पीडीएफ्स बनाकर अपने क्लाइंट्स को सेंड करनी होती हैं, तो वो आप इजीली इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल्स को पीडीएफ में, ठीक है। ग्राफ्स एंड चार्ट्स का कॉलम है इसमें एक, और फिर आप वीडियो एडिटर के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। बाज़ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिसमें जो है हमें उसको प्रोफेशनली जो है ऑफिशियली अपलोड करना होता है, उसमें क्या सीन कट करना है, किस तरीके से रिमूव करना है, या कौन सी वॉइस को ऐड करना है, कौन सी वॉइस को जो है आपने रिमूव करना है, तो इसको आप इजीली कैनवा में आप वीडियो एडिटर को यूज़ कर सकते हैं, कैनवा को एज अ वीडियो एडिटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब की वीडियोज़ बनाते हैं हम लोग, तो यूट्यूब को की वीडियोज़ को अपलोड करने से पहले उसकी जितनी भी एडिटिंग होती है वो आप कैनवा में कर सकते हैं, ठीक है। फोटो एडिटर है, इसको आप फोटो एडिटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और बैकग्राउंड को आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। बाज़ पिक्चर्स ऐसी होती हैं, क्लाइंट आपको जो है वो दे देते हैं अपनी पिक्चर्स के, ऐसी मेरी पिक्चर्स हैं, पुरानी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, आप इसको ऐसा करें, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें, ठीक है। तो इसकी सर्विसेज फिर आगे आप जाके सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपको ये स्किल्स सारी सीखनी है कि कैनवा में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, बिजनेस कार्ड्स आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, जिनको हम लोग आम ज़बान में जो है वो विजिटिंग कार्ड भी कहते हैं। अगर आपने किसी जगह का विजिट करना हो, किसी ऑफिस का, किसी वर्क प्लेस का, तो आप बिजनेस कार्ड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर कार्ड्स हैं आपके, वो चाहे कि आपके वेडिंग कार्ड्स हों, चाहे आपके बर्थडे कार्ड्स हों, इन्विटेशंस हों, आप इसमें इजीली जो है कैनवा में डिज़ाइन कर सकते हैं। मग डिज़ाइंस हैं इसमें, टी शर्ट्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं, मग डिज़ाइंस और टी शर्ट डिज़ाइंस को आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर सेल आउट कर सकते हैं। हुडीज़ हैं, इसमें कैलेंडर्स बनाए जा सकते हैं, लेबल्स हैं, और इसके अलावा जितनी भी मार्केटिंग और बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, बिज़नेस में आपको पता है कि सबसे पहले लोगोज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो डे बाय डे बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो स्टार्ट किए जाते हैं और उनको लोगोज़ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको लोगोज़ डिज़ाइन करने आते हैं तो आप इनको इजीली सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। लोगोज़ हैं, आपके पोस्टर्स हैं, फ्लायर्स हैं, ब्रोशर्स हैं, फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि सोशल मीडिया से रिलेटेड आपकी फेसबुक की रील्स भी आती हैं, इंस्टाग्राम की रील्स भी हैं, फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज़ हैं, फेसबुक की स्टोरीज़ हैं, आप इसी ईज़िली इसमें जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इवन कि अब इसमें आप वेबसाइट्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये ऑल कैनवा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन भी हैं, जो कि आप आहिस्ता-आहिस्ता जब यूज़ टू हो जाते हैं कैनवा से, तो फिर आपको आहिस्ता-आहिस्ता पता चलती हैं कि अच्छा आप कैनवा में एआई को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कैनवा को यूज़ किया जाता है। जी, थैंक यू हिना। अच्छा, अब आपने जैसे देखा कि ये इसकी आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। आप अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे जाके इसकी ऐप इंस्टॉल कर लें और जीमेल के लॉगिन से इसको एक्सेस करें, और इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, लेकिन आप छोटी-छोटी चीज़ों से ट्राई कर सकते हैं इसको बनाना, और बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। ये सारे जो काम हैं ये आप करके सोशल मीडिया पे, क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती है, तो आप सोशल मीडिया के लिए तो उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे प्रिंटिंग का काम आता है फिर वहाँ पे आपको थोड़े एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं। जैसे डिज़ाइनिंग में आपको पता होगा फ़ोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, लेकिन आप एकदम से इलस्ट्रेटर या फ़ोटोशॉप पे जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि आप पहली दफ़ा इसको यूज़ करें तो आप पहले इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, और उसके बाद फिर आप अपने आप को अपग्रेड करते जाएँ, और आप इस पे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप फ़ोटोशॉप पे जा सकते हैं, और इलस्ट्रेटर जैसे जो टूल्स हैं उनको सीख सकते हैं। अच्छा, अब आपने इसके अलावा जब आप ये चीज़ें सीख लेंगे तो साथ-साथ आपकी सोशल मीडिया पे प्रेज़ेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हम इस पे काम करते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमने जो है वो फाइवर पे काम किया, या हम अपवर्क पे कर रहे हैं और हमें काम नहीं मिल रहा, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। तो आपने अपने आप को एक जगह पे लिमिट नहीं करना, बल्कि आप अपनी प्रेज़ेंस को मुख्तलिफ जगहों पे रखें, ताकि अगर आपको एक जगह से काम नहीं मिल रहा तो आप दूसरी जगह पे जा सकते हैं।
تو یہ جو آپ کو یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ فیس بک کے اوپر اپنی پروفائل کی آپٹیمائزیشن کیسے کرتے ہیں. ابھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہاں پہ صرف نورین کا کیمرہ آن ہے, باقی کسی نے کیمرہ بھی آن نہیں کیا ہوا. تو جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا کام کرتی ہیں, تو کیسے آپ کو کوئی کام دے گا. ٹھیک ہے, جب تک آپ کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ تو کلائنٹس آپ کو کیسے اپروچ کریں گے اور کیسے ان کو پتہ ہوگا کہ آپ کس چیز میں ایکسپرٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو اٹ مینس کہ آپ اپنی مارکیٹنگ نہیں کر سکتی ہیں. سو جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ہیں, فیس بک یا انسٹاگرام ہو گیا, لنکڈ ان ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ ایسے پلیٹ فارمس ہیں جہاں سے بہت سارے کلائنٹس آپ کو مل سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی پراپر وہاں پہ پریزنس شو کرنی ہوگی. ڈیجیٹل پریزنس کا مطلب ہے کہ آپ کا پروفائل پکچر ہونی چاہیے, آپ کا کور پیج ہونا چاہیے, آپ کا بایو ہونا چاہیے, اور پتہ چلنا چاہیے انٹروڈکشن میں کہ آپ کیا کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے ریلیٹڈ آپ کا کانٹینٹ ہونا چاہیے اس کے اوپر. یہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ جب آپ ایک تو یہ ساتھ ساتھ آپ کو ڈیجیٹل پریزنس, پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر میں خواتین کو کہتی ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایزی پیسہ ہے یا آپ کے پاس سادہ پے کا اکاؤنٹ ہے یا نیا پے کا اکاؤنٹ ہے. تو موسٹلی خواتین کہتی ہیں نہیں, ہمارے جو ہے نا ہسبینڈ وہ یوز ان کے تھرو کروا دیں گے, یا ہمارے گھر میں جو کوئی مرد ہے وہ یوز کرے گا. اپنا جو ہے وہ کسی خاتون کے پاس اپنا اکاؤنٹ تک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اب ہم ایک ڈیجیٹل دور میں رہ رہے ہیں. اس دور میں تو ہر کسی کو ضرورت ہے کہ اس کی اپنی ایک ڈیجیٹل پریزنس ہو. ٹھیک ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ خود سے اپنی ہر چیز کو ہینڈل کر سکیں, اپنے جتنی بھی اخراجات ہیں ان کو اپنے موبائل کے تھرو کر سکیں. ٹھیک ہے, تو اس سارے یہ چیزیں بھی آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں کون سی ایپس ضرورت ہیں جو کہ ہم لوکلی ہمیں چاہیے. فار ایگزامپل ایزی پیسہ ہے, اور اگر ہمیں باہر ممالک میں کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے یا باہر ممالک سے کوئی کسی بھی شاپ سے کچھ پرچیز کرنا ہے, فار ایگزامپل علی ایکسپریس ہے, بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ کچھ خریدنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کے پاس اپنا جو ہے وہ سادہ پے یا نیا پے کا کارڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ ٹرانزیکشنز کر سکیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ بیسکس میں آتی ہیں. تو یہ جو سیشن ہے یہ اسی لیے ہے کہ پہلے ہمیں بیسکس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, پھر جا کے ہم فری لینسنگ کیریئر کو شروع کریں. ابھی تک نہ ہمارے اکاؤنٹس بنے ہیں ہوتے ہیں, نہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرانزیکشنز کے لیے کوئی ایپس اویلیبل ہوتی ہیں, نہ ہی ہمارے پاس ہم نے فیس بک کو کبھی پروفیشنلی یوز کیا ہوتا ہے, نہ کبھی لنکڈ ان کے اوپر اپنی پریزنس رکھی ہوتی ہے. تو کیسے آپ اپنی چیزوں کو سیل کر پائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیجیٹلی پریزنس شو کرنے کے بعد ہی آپ دوسروں کو دکھا سکیں گے. ٹھیک ہے, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, جب تک آپ کو کچھ آتا ہے اور آپ نے کسی کو نہ بتایا تو گھر بیٹھے کون آ کے آپ کے گھر میں پتہ کرے گا کہ آپ کو کیا کام آتا ہے. ٹھیک ہے, تو آن لائن اگر کام کرنا ہے تو آن لائن آ کے بتانا پڑے گا کہ میں اس چیز میں ایکسپرٹ ہوں, مجھے یہ کام آتا ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ جو ہیں وہ آپ کو اپروچ کریں گے, کلائنٹس آپ کی طرف آئیں گے. اچھا, جیسے آپ نے اس میں دیکھا بہت سارے پلیٹ فارمس ڈسکس کیے گئے تھے. فائور ہے, ورک ہے, guru.com ہے, فری لینسر ہے, ٹھیک ہے, پیپل پر آور ہے. تو بہت سارے پلیٹ فارمس ہیں. تو اب آپ جیسے ان سب پلیٹ فارمس کے نام سنتے تو ڈر جاتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ یہ پلیٹ فارمس کیسے کام کرتے ہیں. تو آپ جو ہیں وہ فائور سے شروع کر سکتے ہیں, فائور کے پلیٹ فارم کو سمجھ سکتے ہیں. فائور کے بہت سارے کورسز یوٹیوب پہ بھی آپ کو فری میں اویلیبل ہوں گے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے سکھایا جائے تو وہ بھی آپ کو ہنا سکھا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ہنا کی کلاسز آپ جوائن کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کو لائیو کلاسز میں اپنی اسکرین شیئر کر کے یہ چیزیں سکھا سکتی ہیں کہ فائور کے اوپر کیسے کام کیا جاتا ہے. اور فائور سے پہلے جو چیزیں میں نے ساری بتائی کہ ڈیجیٹل پریزنس ہونا, یہ ساری چیزیں, یہ سب چیزیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ساتھ ہی آپ کو جب آپ فائور کے پلیٹ فارم پہ بھی ہم چل کے دیکھیں گے کہ آپ کیسے کام کرتے ہیں, اور آلریڈی وہاں پہ لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں سیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنی جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ پریزنس رکھ کے اپنے کام کو شو کرنا ہے اور کام کلائنٹس لینے کی کوشش کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو ویلیویبل بنانا ہے, اسکلفل بنانا ہے, وہ کام سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو کام سیکھنے کے لیے آپ اپنے موبائل سے سیکھنا شروع کر سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی تھوڑا سا ہے نا فائور کے بارے میں بتا دیں کہ فائور جو ہے وہ کیسا پلیٹ فارم ہے اور اس کے اوپر لوگ کیا کیا سروسز سیل کر رہے ہیں. جی, تو جیسا کہ ابھی میم نے آپ کو بتایا کہ فائور ایک ایسی مارکیٹ پلیس ہے جس پہ آپ اپنی
डिजिटल प्रेजेंस बनाकर तो आप अपनी डिजिटल सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं। अब फाइवर को सेम इसी तरीके से जैसे कि आपने कैनवा को या आपने जूम को या स्ट्रीम यार्ड को आपने अपने जीमेल से लॉगिन किया, इसी तरीके से आप फर्स्ट टाइम जब फाइवर को लॉगिन करते हैं तो आप अपने जीमेल से लॉगिन करेंगे और आपका फर्स्ट जो अकाउंट बनता है वो बायर अकाउंट बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी प्रोफाइल्स बनाई जाती हैं और उसके बाद फिर आपका सेलर अकाउंट बनता है, ठीक है। तो आप बेसिकली अभी आपसे जो बात हो रही है वो कैनवा के मुतालिक हो रही है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मुतालिक हो रही है। तो हम देखते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कितना स्कोप है कि क्या क्या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के तौर पर जो है वो सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपसे जिक्र किया है कैनवा में आप लोगोज इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखें कि फर्स्ट आपके जो है वो कैटेगरी जो है वो लोगोज की ही है, ठीक है। लोगोज एंड ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है। फिर लोगो डिज़ाइन है, ब्रांड स्टाइल गाइड्स हैं, बिजनेस कार्ड्स हैं एंड स्टेशनरी है। आपको एक चीज़ डिज़ाइन करनी आती है, साथ साथ आप दूसरी चीज़ की भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, फिर आपको ये वाली सब चीज़ें बनाना आपके लिए ईजी हो जाता है, इन सब की डिज़ाइनिंग करना, ठीक है। फॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफी क्या है ये आपको सिखाया जाता है प्रॉपर्ली। लोगो मेकर का टूल देखें अभी इन्होंने एक ऐड कर दिया है। आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस किस तरीके से बना सकते हैं कैनवा में आप इजीली बना सकते हैं। एआई आर्टिस्ट के तो को बनाया जा सकता है कि एआई किस तरीके से बन सकता है। डीआईडी प्रेजेंटेटर्स क्या होते हैं, फिर एआई एवटार्स डिज़ाइन हो सकते हैं, ठीक है। वक्त के साथ साथ क्या होता है कि फाइवर में एक न्यू कैटेगरी ऐड कर दी जाती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कम कंपटीशन वाले कैटेगरीज में आप जो है वो परफॉर्म करें तो इन न्यू कैटेगरीज में आप काम करके सीख सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रंस बुक्स इलस्ट्रेशंस, ठीक है। बुक्स की इलस्ट्रेशंस बनाई जा सकती हैं, जैसे कि पिक्चर्स देखते हैं ना आप बुक्स में कि चिल्ड्रंस की बुक में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बनाए हुए होते हैं, कार्टून्स कैरेक्टर्स बनाए हुए होते हैं, इलस्ट्रेशंस बनी हुई होती हैं, तो किस तरीके से ड्राइंग्स कर रहे होते हैं बच्चे, तो आप इजीली कैनवा में इलस्ट्रेशंस भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर वेबसाइट डिज़ाइंस हैं, वेबसाइट को डिज़ाइन किया जा सकता है, ऐप डिज़ाइनिंग है, ये सब के सब जो प्रोडक्ट्स हैं ये कैनवा में और ये आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो है वो आपकी सर्विसेज हैं जो आप फाइवर पे सेल आउट करते हैं, ठीक है। विजुअल डिज़ाइंस हैं, इमेज एडिटिंग है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि फ़ोटो एडिटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, वीडियो एडिटर के तौर पर आप कैनवा को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया के डिज़ाइंस बना सकते हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट हैं, बैनर्स हैं आपके पास, ठीक है। और ये सब के सब आप चीज़ें कैनवा में इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका जो है लैंडस्केप डिज़ाइन आ जाता है, बिल्डिंग इंजीनियरिंग है, इसमें फैशन एंड मर्चेंडाइज आ जाता है, टी शर्ट डिज़ाइन है। आपको पता है कि कैनवा में अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि कैनवा में आप इजीली टी शर्ट्स और मग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रोग्रामिंग एंड टेक है, अगर आप ये प्रोग्रामिंग एंड टेक सीख लेते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख लेते हैं तो आप फाइवर पे इजीली सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ किया जा सकता है, वीडियोस एंड एनिमेशंस को यूज़ किया जा सकता है। वीडियो एडिटिंग अगर आप कैनवा में करते हैं तो आप इजीली वीडियो एडिटिंग के तौर पर, वीडियोस एडिटर के तौर पर आप फाइवर पे अपनी सर्विसेज जो है वो सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। विजुअल इफेक्ट्स आप दे सकते हैं, वीडियो आर्ट है, इंट्रो एंड आउट्रो वीडियोस हैं, आपकी वीडियो टेम्पलेट्स एडिटिंग है, ये सब आप कैनवा में भी कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेशंस है, कैरेक्टर एनिमेशंस है, कैनवा में इजीली बना सकते हैं। फिर ट्रांसलेशंस पे आ जाते हैं हम लोग, जो राइटिंग एंड ट्रांसलेशंस है जिसको किया जा सकता है। आपकी क्लास जो है वो चैट जीपीटी की भी अलग से करवाई जाती है। अगर आपको चैट जीपीटी के बारे में नो हाउ हो तो चैट जीपीटी को किस तरीके से यूज़ किया जाता है आपकी कंटेंट बनाने में, कंटेंट राइटिंग में और आगे डिज़ाइंस बनाने में, तो ये भी आप इजीली सीख सकते हैं। ई बुक्स क्या होती हैं, आप कैनवा में इजीली की ई बुक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर म्यूज़िक एंड ऑडियोज़ हैं, अगर आपको म्यूज़िक का शौक़ है तो आप इसमें इस कैटेगरी में काम कर सकते हैं। फिर बिजनेस है, कंसल्टिंग है, अगर आप कंसल्टेशंस देना चाहते हैं तो आप वो भी काम कर सकते हैं फाइवर पे। डाटा है, फिर एआई सर्विसेज हैं, ये सब के सब आप फाइवर पे जाकर काम कर सकते हैं। और जो यहाँ पर डिजिटल आपकी शॉप ओपन होती है, ये जैसे कि डिजिटल शॉप्स आप देख रहे हैं यहाँ पे ओपन की गई हैं आपसे पहले लोगों ने जो बनाई हैं, तो यहाँ पे ये डिजिटल शॉप्स आपकी ओपन की जाती हैं जिनको फाइवर की ज़बान में जो है वो गिग कहा जाता है,
ठीक है, तो ये सब काम आपको सिखाया जाता है। जी मैम। जी, ठीक है, थैंक यू हिना। अच्छा, अभी आपने जैसे देखा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताया कि अवेलेबल हैं, लेकिन हम फाइवर से अपना काम शुरू कर सकते हैं। जब आपको ये प्लेटफॉर्म समझ आ जाए तो फिर आप बाकी और भी बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपनी सेम सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। फाइवर के ऊपर बहुत सारी कैटेगरीज आपने देखी और इसके बाद आप कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि इनमें से किस कैटेगरी में जाएं। आप अपनी पसंद की कैटेगरी में भी जा सकते हैं, जैसे कि अगर आप प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग की कैटेगरीज में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। आप उसमें से कोई भी एक स्किल को सीखें और उसी प्लेटफॉर्म पे सेल करें। इस प्लेटफॉर्म आपको खुद बता रहा है कि ये वाली स्किल्स यहाँ पे मौजूद हैं और ये इस पे काम हो रहा है। हम कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो वो प्लेटफॉर्म आपको खुद गाइड करता है कि ये किस तरह से आपने इस प्लेटफॉर्म पे आके एक्सेल करना है। ठीक है, सिर्फ क्या है कि उस पर आपको टाइम स्पेंड करना है और उस प्लेटफॉर्म को प्रॉपर तरीके से समझना है। अभी हम इसको प्रॉपर तरीके से समझते नहीं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ़ौरन हमें इस पे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाए और हम इससे अर्निंग जनरेट कर लें। तो कम से कम आपको रोज़ आधा घंटा जो है ना वो इस प्लेटफॉर्म को देना है और इसको समझना है कि इस पे कैसे काम किया जाता है। ठीक है, फ़ौरन से आपने एग्ज़ाम देने के लिए नहीं बैठ जाना। एग्ज़ाम देने से पहले की जो प्रिपरेशन होती है ना वो लाजमी करनी है। फिर आप कॉन्फिडेंट होकर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके काम कर सकते हैं। अगर आपको काम नहीं आता है अभी तक तो फिर आपने जाके प्लेटफॉर्म्स पे नहीं अपने आप को करना, अदरवाइज आप खुद परेशान होंगे कि हमें क्यों नहीं काम मिल रहा। तो प्लेटफॉर्म की जो समझ है उसको करने के लिए आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी काम पे आप टाइम लगाएंगे तो तभी आपकी आउटपुट आएगी। बहुत सारे लोग जो फ्रीलांसिंग का कैरियर शुरू करते हैं वो सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें बताएं कि हमारी अर्निंग कितनी होगी, कितनी जल्दी होगी। क्या हम 2 महीने के बाद बेसिक फ्रीलांसिंग को सीखने के बाद जो है वो फ़ौरन से अर्निंग करना शुरू हो जाएंगे? तो ऐसा पॉसिबल है भी और ऐसा पॉसिबल नहीं भी है। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा आप मेहनत करें तो 2 महीने के बाद आप अर्निंग जनरेट कर सकें, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखने में आया है, जो कि अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि 2 महीने में तो आपकी थोड़ी-सी बेस होती है, आपको सही तरीके से मोबाइल को यूज़ करना आता है कि बेस इससे पहले आप मोबाइल को किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं और जब आप इसको प्रोफेशनली यूज़ करते हैं तो आपको समझ आती है कि अच्छा मोबाइल के थ्रू हम क्या-क्या काम कर सकते हैं और इससे भी अर्निंग्स जनरेट कर सकते हैं। तो 2 महीने में तो आप के जो है ना वो आप थोड़ा बहुत जो है वो सीधे होते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। फिर उसके बाद चल के आहिस्ता-आहिस्ता आपको चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं और हो सकता है कि जो आज आप माइंड बना के चल रहे हैं कि मैंने ग्राफिक्स डिज़ाइनर बनना है या मैंने वीडियो एडिटर बनना है, तो हो सकता है कि 2 महीने के कोर्स के बाद आपको इतना एक्सपोज़र मिल चुका होता है कि आपको पता चलता है कि ये तो दुनिया ही कुछ और है, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप उसके बाद आप किसी और फील्ड को चूज़ करें और फिर उसमें आप मेंटोरशिप ले सकते हैं या आप खुद से अगर इंडिविजुअल लर्नर हैं तो आप खुद भी सीख सकते हैं। तो ये जो 2 महीने का कोर्स है ये सिर्फ़ आपको एक जो है वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली करने के लिए है। ठीक है? सो इन यहाँ से आप इन 2 चीज़ों से, इन 2 ऐप्स के थ्रू फाइवर की ऐप भी आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं मोबाइल के ऊपर। इस पे भी आप अपने स्टार्ट कर सकते हैं, लर्निंग शुरू कर सकते हैं और कैनवा को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप ये दोनों चीज़ें सीख लें तो फिर थर्ड चीज़ आपकी नेटवर्किंग होती है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलना है, उनके साथ दोस्ती करनी है, फ्रेंडशिप करनी है और कैसे की जाती है ये भी आपको प्रॉपर नेटवर्किंग सीखनी है। नेटवर्किंग करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। ठीक है, कम्युनिकेशन सीखनी है। इन 2 चीज़ों के साथ, ये जो बेसिक मैंने बताई है इसके साथ-साथ जो है वो आप को ये कम्युनिकेशन और साथ में जो है नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस तरह से करके आप अपने कैरियर को फ्रीलांसिंग को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है उसको अब हम फिनिश करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हैं इधर कमेंट्स में, या अगर आप मेरे साथ लाइव हैं तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि अभी तक हमें क्या चीज़ नहीं समझ आ रही कि हम फ्रीलांसिंग कैरियर को कैसे शुरू करें, प्लीज़ लेट अस नो हाउ टू ज्वाइन द लाइव सेशन। अब तो लाइव सेशन नाहिद फिनिश हो गया है, ये इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। आप स्कूल का जो पेज है उज़मा हफीज़ ऑनलाइन अर्निंग स्कूल, उसके पेज के ऊपर भी इसको लाइव देख सकते हैं, वहाँ पे रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। या आप मेरी प्रोफाइल पे चले जाएँ या मैम हिना की प्रोफाइल पे जाएंगे, वहाँ पे भी आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप फिर इसको बाद में देख सकते हैं और कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप
जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको खुद से जी जी, तो मैम अगर हमें सीखना है जैसे उसकी क्या वो हम कैसे आप लोगों को रीच आउट कैसे कर सकते हैं? जी, आपने जिस व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन किया है, ये स्ट्रीम यार्ड का लिंक, या अगर आपने फेसबुक से ज्वाइन किया है तो मैम हिना बिलाल का वहाँ पे नंबर गिवन है, और हिना यहाँ पे आप लिख भी दें, बेशक अपने उस पर नाम के आगे कर दें, या यहाँ पे कमेंट में अपना नंबर लिख दें, तो आप मैम हिना बिलाल को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जो है वो 1 to 1 जो है वो मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं तो सेम यही वाला जो कोर्स है asan.org पे भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, और सर रेहान अल्लाहवाला के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी फ्रीलांसिंग की ABCD फ्रीलांसिंग ABCD के नाम से ये कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आप ये इन दोनों जगहों से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टीचर की सुपरविजन में करना चाहते हैं तो तब आप मैम हिना बिलाल को कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसमें आपको पेशेंस के साथ 2 महीने 2 दिन हफ्ते में 2 दिन लाइव जूम पे क्लासेस लेनी होगी, 1 घंटा बैठ के प्रॉपर सीखना होगा, और बाकी दिनों में आपको अपना टास्क कंप्लीट करना होगा जो आपको असाइन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप जब 2 महीने का आप ये कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद फिर 3rd मंथ में आपको नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन जो है वो सिखाई जाएगी। 1 मंथ जो है उसके ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, नाहिद, नेक्स्ट जब सेशन होगा तो हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको, तो फिर आप ना कहा कि फेसबुक पेज से ही इनका नंबर मिल जाएगा ना? ओ अच्छा, ठीक है, अपना नंबर ठीक है, मैंने शेयर भी कर दिया नंबर, और आप यहाँ से भी कर लीजिएगा। व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें एडमिन में है ना, वहाँ पे भी आप इनको कांटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो बिल्कुल अभी न्यू हैं और अपना कैरियर शुरू करना चाहती हैं लेकिन समझ नहीं आ रही है कि कहाँ से शुरू करना है, तो वो हिना बिलाल के साथ अपने आप को अटैच कर लें और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को सीखना शुरू करें। ठीक है, और पेशेंस के साथ, इसमें टाइम लगता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। फ्रीलांसिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने आज शुरू किया और 2 महीने के बाद आपने लाखों में कमाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। टाइम लगेगा, लेकिन वो वक्त आएगा कि इंशाल्लाह आप लाखों में कमाएंगे। ठीक है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आपको और भी क्वेश्चन हो तो आप जो नंबर गिवन है इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।